नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत भूटान रेल संपर्क की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत और भूटान जल्द ही इतिहास रचने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच पहली रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस संबंध में भारत और भूटान ने दोनों देशों के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक अंतर सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत भूटान रेल संपर्क परियोजना के बारे में विस्तार से बताया। भूटान के 2 शहरों तक रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। इस पूरे नेटवर्क पर 4000 से अधिक करोड़ रुपया खर्च होगा और इसे अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भूटान के साथ व्यापार और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की ये पहली रेल संपर्क परियोजना है। ये परियोजना भूटान को उसकी पहली रेल कनेक्टिविटी देगी और भारतीय बाजारों तक उसकी पहुंच आसान बनाएगी। भारत के लिए ये पहल भूटान के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का मौका है। भारत और भूटान के बीच संबंध असाधारण विश्वास, आपसी सम्मान और समझ पर आधारित हैं। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारत भूटान रेल संपर्क परियोजना की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जया वर्मा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हैं। संजय जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। भारत भूटान रेल संपर्क परियोजना पर चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा। दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली कनेक्टिंग 2 very important cities of Bhutan. One is Gyelephu. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The 2 projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees. The total length is about 89 kilometers of railway network will be created. This is the current railway network. The yellow line that you see in between the 2 blue lines, that is the most important economic corridor, rail corridor, connecting Assam, Tripura, Mizoram, Nagaland, Meghalaya. There is a blue line on the top. That line is now getting developed as a major corridor along the northern border. And that line basically provides alternative connectivity, and it's a very, very important project. So the takeoff of these 2 projects will happen, one at Banarhat from that blue line that you see, that goes all the way to Samse, and the other one from Kokrajhar that will go to Gyelephu. New Bongaigaon is a major industrial center in India where it is getting connected. Kokrajhar is the station, and then it gets connected to the entire Indian railway network. So in a sense, by constructing about some 70 kilometers, you get the advantage of 1,50,000 kilometers of railway network. The construction period will be about 4 years for this project. All the land schedules, everything has already been done. Very soon we'll start the construction work. Banarhat to Samse is the second line. On the existing railway line, we'll also have 2 small cord lines, so that the movement can happen on both sides of the train seamlessly. This is about 577 crores and this will take about 3 years. Lots of goods movement which takes days today will start happening in few hours. We have seen in Mizoram, it used to take 4-5 days for a cement truck or any other goods truck to reach capital Aizawl. Now that's happening in a few hours. In case of Srinagar, we have seen that the time for goods shrinks from days to hours. So that is the benefit which will happen for Samse as well as Gyelephu. This is one of the promises we had made, and we are delivering on this promise. जाहिर सी बात है, भारतीय रेल का ये नेटवर्क जो है भारत और भूटान के संबंधों को एक नई दिशा देगा। जया सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर सबसे पहले, क्योंकि भारत और भूटान के बीच जो रेल नेटवर्क है उसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी और अब इस सरकार में
वो लक्ष्य जो है वो पूरा होने जा रहा है। 4 साल का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रोजेक्ट जो है, जो रेल परियोजना है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? जी, ये रेल परियोजना जो है ये भारतीय रेल को और भारत को रेल नेटवर्क के थ्रू भूटान से जोड़ेगी और बहुत ही आसान कर देगी वहाँ आना जाना। जी। अभी तक आप देखते हैं कि भूटान के लिए आने जाने में रोड जो है वो बहुत दुर्गम है और कई बार बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहां पर आना जाना और ज्यादा कठिन हो जाता है। पर रेलवे नेटवर्क जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि उसको ऑल वेदर कनेक्टिविटी और डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाता है। जी। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है नॉर्थ ईस्ट में भारतीय रेल का, उसको ही आगे बढ़ाते हुए और उससे सीख लेते हुए ये अभी भारतीय रेल ने अपने कंस्ट्रक्शन को इतना मॉडिफाई कर लिया है और स्ट्रेंथन कर लिया है कि जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक तो वो बहुत गति से हो रहा है और दूसरा उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो डिजाइन्स हैं, वो सब क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसलिए ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बहुत आसानी से आप भूटान और इंडिया के बीच में ट्रैवल कर सकेंगे। कार्गो ही नहीं, लोग भी बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। ये ट्रेन जो लाइन बन रही है ये वंदे भारत जैसी गाड़ियों के लिए फिट रहेगी। यहाँ पर ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफाइड रहेगी और यहाँ पे आना जाना एकदम आसान हो जाएगा। इसलिए ये एक तरह से सीमलेस कनेक्टिविटी दे देगा भूटान को। जी, बिल्कुल जया जी, इसके और भी पहलू हैं, उनसे भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन भारत और भूटान के संबंधों की बात की जाए तो माना जा रहा है ये रेल नेटवर्क भारत के लिए, भूटान के लिए एक मौका है आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का। डॉक्टर संजय जी, आप कैसे देखते हैं भारत और भूटान के इन संबंधों को, खासतौर से जब एक बड़ी परियोजना, रेल परियोजना भारत के 2 शहरों को भूटान के 2 शहरों से जोड़ेगी? इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो भारत और भूटान के बीच में एक यूनिक जो एक पार्टनरशिप है, जो एक यूनिक संबंध है, उसको और मजबूत करेगी और प्रगाढ़ करेगी। और काफी समय से देखो, हमने 1950 में जो 49 में ट्रीटी किया था भूटान के साथ में, वो ट्रीटी भी काफी कुछ सक्सेसफुल रही। 2007 में उसमें छोटा एक अमेंडमेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और भूटान चाहे वो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में या आप ये कहीं इकोनॉमिक क्षेत्र में क्लोज पार्टनर है। आप मोटे तौर पे देखिए कि भूटान में क्या पोटेंशियल है। भूटान के पास सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक स्कोप है। और आप ये देखिए कि 5 प्रोजेक्ट्स में भारत ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे उसमें चूका मान लीजिए, ताला मान लीजिए, मांगचू मान लीजिए, किरीचू है और पुनानसंतु। ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जो दूसरा बड़ा पोटेंशियल है वो टूरिज्म है। मैडम ने भी सही बात कही कि जो कनेक्टिविटी पहले जो थी वो एक डिफिकल्ट टेरेन के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी थी। अब जिस तरीके से ये रोड के 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए हैं, ये निश्चित रूप से ना केवल वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी को भूटान से इजीली कनेक्ट करेंगे, साथ ही साथ असम का जो कोकराझार है उसको जो गेलेपू जो सिटी है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वहां के किंग का, जिसको कहेंगे कि गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी। और उसको एक तरीके से ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के रूप में, एक मॉडर्न सिटी के रूप में वो डेवलप कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। तो जो 2 देशों के बीच में, चाहे वो और या कहिए 2 राज्यों के बीच में, खासकर वेस्ट बंगाल और असम के बीच में कनेक्टिविटी इतनी आसान हो जाएगी कि दोनों देशों की जनता, दोनों देशों के कल्चर, दोनों देशों के रिसोर्सेज में दूरियां कम हो जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो भारत पहले भी एक पॉलिसी इनिशिएटिव ले चुका है कि हमारा जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है, जिसमें भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और इंडिया, ये चारों कंट्रीज एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी किया था 2015 में। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन भारत का एक विजन है कि जो अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें न केवल बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल को भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक एक्टिव पार्टनर बनाया जाए। और इस
इसमें एक बहुत बड़ा एक पक्ष है कि जब भूटान असम से कोकराझार से जुड़ेगा तो जो भारत का एक प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में है कि 2030 में हम हमारा जो विजन है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट आपस में कनेक्ट हो जाएगा, और वही प्रोजेक्ट जो दूसरे ट्राई नेशंस रोड कनेक्टिविटी, चाहे थाईलैंड है, म्यांमार है उसके साथ, और साथ ही साथ जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स है उसमें कनेक्ट करने की जो भारत की योजनाएं हैं उसमें भी भूटान इंटीग्रेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, बहुत लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव था, और मुझे ये भूटान को दुनिया के दूसरे देशों से भी जोड़ेगा और भारत के साथ ज्यादा इंटीग्रेट करेगा, ज्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, एजुकेशनल कांटेक्ट होगा। दूसरा जो डिजिटल डिवाइड्स हैं या बाकी जो डिवाइड्स है, कल्चरल क्लोजनेस है, उसमें भी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल। जया वर्मा सिन्हा जी, अगर बात की जाए भारतीय रेल की तो जाहिर सी बात है भारत में भारतीय रेल एक तरह से मैं कहूँगा लाइफलाइन है, और जिस तरह का नेटवर्क भारत में है उसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार की जो पहल है उसे आप कैसे देखती हैं, और क्या पूर्व का कोई अनुभव ऐसा रहा है जिसे आप साझा कर सकें? माना जा रहा है ये एक सफल प्रोजेक्ट रहेगा, आप कैसे देखती हैं इसको? जी, भारत जो है वो जैसा संजय जी ने कहा, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उस पे आगे बढ़ रहा है, और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो वाटरवेज की हो, चाहे वो रेलवेज की हो या एयरवेज की हो, जिस भी प्रकार की कनेक्टिविटी है उसको आगे बढ़ा रहा है। और सिर्फ ये भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या असम तक ही सीमित नहीं है, ये इसके बियॉन्ड म्यांमार, थाईलैंड, इस तरह के भी आगे बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी के ऊपर काम चल रहा है। एक बहुत बड़ा ट्रांस एशियन नेटवर्क का विजन है जिसमें कि ये सब उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। किसी भी रीजन को डेवलप करने के लिए उसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज की तारीख में यूरोप को देखेंगे जी। तो यूरोप में जो ट्रैवल है वो सीमलेस है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप एक देश से दूसरे देश चले गए हैं। और उसी की वजह से वहां पर जितना भी आर्थिक विकास है आज की तारीख में वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और एक यूरोपियन यूनियन का विजन वहां पर आया है जो कि उनको एक उनकी आर्थिक डेवलपमेंट को एक और वो देता है, फिलिप देता है। इसी तरह से हमारा जो साउथ ईस्ट एशियन नेट रीजन है, इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए इन कंट्रीज की कनेक्टिविटी, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ हमारा रेल का नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है, और हम कुछ समय पहले तक तो वहां पर 3 पैसेंजर गाड़ियां भी चल रही थी लगातार, और अभी फ्रेट तो चल ही रहा है। तो और जितना भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे किसी और मोड से, भारत बांग्लादेश का ही एग्जांपल ले लें, और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे रेल के मूवमेंट से, तो बहुत ज्यादा सुगम और आसान है ये मूवमेंट, कार्गो के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, यात्रियों के लिए भी। तो इस प्रकार की कनेक्टिविटी हम जितनी बढ़ाएंगे उतना इस रीजन को डेवलप करने में और उसको इंटीग्रेट करने में और उसको सबका समग्र विकास जो है इसी कनेक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है रेल का भारत भूटान के बीच। लेकिन डॉक्टर संजय जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये बात ठीक है कि भारत और भूटान के बीच जो रेल नेटवर्क बनेगा, जो रेल लाइन बिछाई जाएगी, जाहिर तौर पर लोगों को उससे फ़ायदा होगा। अगर आर्थिक दृष्टि से बात की जाए, पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए तो दोनों देशों को फ़ायदा होगा। लेकिन एक अहम मुद्दा, रणनीतिक रूप से क्या फ़ायदा होगा दोनों देशों को, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर रणनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से भूटान भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वो कोई भी मुद्दा इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उसमें भूटान हमेशा भारत के साथ सपोर्ट करता है, स्ट्रांगली खड़ा होता है। जैसे मैं कहूँगा कि सबसे पहले कोई आवाज़ अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए उठाता है तो भूटान उठाता है। अगर कोई
मुद्दा है, टेररिज्म का है, इंसर्जेंसी का है, बाकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें अगर कोई ओपनली सपोर्ट करता है दक्षिणी एशिया में तो भूटान है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि हमारा जो व्यवहार है भूटान के साथ कोई स्पेशल नहीं, हमारा व्यवहार सभी देशों के साथ अच्छा है। भारत की देखो 3 नीतियां हैं। पहला जो नीति है कि नॉन रेसिप्रोकल, जो गुजराल डॉक्ट्रिन से शुरू होता है कि हम अपने रिलेशंस को नॉन रेसिप्रोसिटी के आधार पे आगे बढ़ाएंगे और हम बहुत कुछ हद तक नेपाल, बांग्लादेश, बाकी देशों के साथ संबंध सुधारने में सक्षम रहे। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो भूटान पे भी लागू होता है कि हम कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म की, यानी कि हम अपने नेबर्स को यूनिलेटरली डेवलपमेंटल पार्टनरशिप देते हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश को लगभग $10 बिलियन का हमने पार्टनर लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया, नेपाल, श्रीलंका सबको। भूटान को भी आप देखिए कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने 4,500 करोड़ रुपए दिया, अभी 13वीं में हमने उसको डबल कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए हम 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 2024 से 2029 है। यानी कि हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग जो एक इन्वेस्टमेंट है वो ना केवल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करता है, साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक, मैं चाइना को इसमें लाना नहीं चाहता जी। क्योंकि चाइना और भूटान के वो यूनिक संबंध नहीं है जो भारत और भूटान के संबंध है। चाइना भूटान को बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक और बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करके कॉन्फ्लिक्ट्स में उसको इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन हमेशा भूटान की एक जो फॉरेन पॉलिसी नीति रही है वो भारत की विदेश नीति से पूरी तरह अलाइंड है। और उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमारा जो एक अपना संबंध है भूटान के साथ में वो बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। अब एक और महत्वपूर्ण जो पक्ष आता है कि देखिए हम पूरा इंटीग्रेट करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे अभी रेलवे के साथ साथ जो एक प्रोजेक्ट और आया जिसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल जो भूटान के साथ कनेक्ट हुआ, कि अब ना केवल रोड के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी भूटान से व्यापार होगा। और जो खासकर वहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको कहेंगे कि डोलोमाइन है, फेरो है, सिलिकॉन है, स्टोन चिप्स हैं, ये बहुत सारी चीजें जो हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं एनर्जी के अलावा। साथ ही साथ जो भूटान के जो दोनों शहर हैं, आप अगर गेलुपू को लेते हैं तो वो बेसिकली टूरिज्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो दूसरा शहर है समझते वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सिटी है भूटान का, तो हम इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि ज्यादातर जो ट्रेड है लगभग 80% भूटान का ट्रेड भारत के साथ में होता है, तो वो ट्रेड जो इनका जो इंडस्ट्रियल कंट्री ये सिटीज है वो भी भारत के साथ में एक इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल लिंकेजेस को मजबूत करेंगे। साथ ही साथ जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है उसमें देखिए 2002 की मैं बात बताता हूं, एक ऑपरेशन क्लीन हार्ट चला था। जब ऑपरेशन क्लीन हार्ट में क्या था कि जो असम के इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे, उल्फा और बाकी जो ग्रुप्स थे, उन्होंने भूटान को एक सेफ हेवन बना रखा था, लेकिन उन्होंने हमको पूरा एक फुल हैंड सपोर्ट किया कि आप भूटान में जितने भी इंसर्जेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको आप खत्म कीजिए, साथ दीजिए। बांग्लादेश भी इसमें सहयोग दिया जब शेख हसीना की सरकार थी। अभी बांग्लादेश में स्थिति प्रतिकूल है, लेकिन अगर कल बांग्लादेश के साथ अच्छी स्थिति आती है तो आप बात मान के चलिए कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, ये सब चारों कंट्रीज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप निभाएंगे। और जो मैडम ने बात कही कि देखिए 3 रेलवे लाइन पहले थी वो बांग्लादेश के साथ, अब 5 हो गई है, और साथ ही साथ जो मोंगला को खुलना से जोड़ के एक तरीके से एक्सेस भूटान को भी मिलेगा और नेपाल को मिलेगा। दूसरा जो पोर्ट तैयार हो रहा है पायरा पोर्ट, उसमें भी नेपाल, भूटान उसमें साझेदार होंगे। साथ ही तीसरा जो अगर ये रेल कनेक्टिविटी जो आ रही है जिसको हम गेलेपू रोड कनेक्ट इसको जोड़ेंगे कोकराझार से, ये आसाम के थ्रू, और आप ये मान के चलिए कि त्रिपुरा होते हुए ये चितागंज पोर्ट तक भी एक्सेस रख सकते। तो यानी कि एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे जो दोनों देशों को ना केवल इकोनॉमिक पार्टनरशिप देंगे, बाकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी देंगे। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स जो एक तरीके से डीप पॉकेट्स के साथ में इस क्षेत्र में आने का प्रयास कर रही है, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, और मुझे लगता है भूटान भी इस तरीके के झांसे में नहीं आएंगे और भारत के साथ जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल जया जी, भारत और भूटान के बीच जो रेल नेटवर्क स्थापित होगा उसका खर्चा एक तरह से पूरा भारत ही उठाएगा, विदेश मंत्रालय इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भूटान को, अगर हम पूर्व उत्तर भारत की बात करें तो किस तरह से भूटान को
फायदेमंद ये रेल नेटवर्क से फायदा होगा? किस तरह से उसके जो उत्पाद हैं उसको एक वैश्विक बाजार या भारत का बाजार मिलेगा? इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? भूटान के पास कुछ बहुत वैल्यूबल मिनरल्स हैं, जैसे कि डोलोमाइट है, फेरोसिलिकॉन है, स्टोन चिप्स हैं। ये इस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो आज की तारीख में भी बहुत डिफिकल्टी से भारत के मार्केट्स में और बाहर भी विदेशों में जाते हैं। जी इनका एक्सपोर्ट जो होता है भूटान से वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसलिए उनको एक्सेस चाहिए पोर्ट्स के लिए, तीसरे किसी देश में भेजने के लिए जी सामान, और भारत जी तो एक बहुत बड़ी मार्केट अवेलेबल है। जब ये रेल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी तो ये भूटान के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो एक तो रेलवे के थ्रू भारत जैसे एक ह्यूज मार्केट को एक इजी एक्सेस उनको मिल जाएगी। भारत का नेटवर्क, भारतीय रेल का नेटवर्क आज की तारीख में 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है और ये भारत के हर छोर तक पहुंच चुकी है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, और असम में भी बहुत तेजी से आगे विस्तार इसका हो रहा है। तो रेल कनेक्टिविटी जो है वो भारत की पूरी मार्केट को ओपन कर देगी और उनको कोई परेशानी नहीं होगी अपने एक्सपोर्ट्स को मल्टीप्लाई करने में, सिर्फ इंडिया की ही मार्केट से। और जहां तक तीसरे देशों की बात है, उसके लिए भी उनकी एक्सेस पोर्ट्स से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो बांग्लादेश के पोर्ट्स हों, चाहे वो भारत के पोर्ट्स हों। द चॉइस विल बी देयर्स। तो वो जिस भी पोर्ट से उनको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो वो कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो आईमैक कॉरिडोर है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जी एक मल्टी मोडल कॉरिडोर जो कि मिडिल ईस्ट और यूरोप को भी कनेक्ट करेगा, उसमें भारतीय रेल बीच का मिडिल माइल है, उसके बाद शिपिंग लेग्स हैं, उसके बाद में बाकी कंट्रीज में भी मूवमेंट है। तो वो कॉरिडोर भी जो है उसकी भी एक्सेस जो है वो भूटान को बड़ी आसानी से मिल सकेगी। तो यूरोप की मार्केट्स के लिए भी एक बहुत इजी एक्सेस रेल के थ्रू मिल सकेगी। तो ये एक भूटान के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी खुलेगी, जिससे कि वो ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स को इजी एक्सेस कर लेंगे। और भूटान एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म सेंटर है, जी कार्गो ही नहीं, टूरिज्म उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके लिए भी इजी एक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप वहां पहुंचना आसान कर देंगे, अगर आप कल की तारीख में वंदे भारत चला देंगे, तो मेरे ख्याल से टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जी डॉक्टर संजय जी, अगर टूरिज्म की दृष्टि से बात मैं करूं, पर्यटन की दृष्टि से बात करूं, तो भारत और भूटान के बीच जो रेल परियोजना है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूर्व उत्तर भारत के लिए भी, भूटान के लिए भी और भारत के लिए भी। देखिए, जो क्लीन और ग्रीन जो एनवायरनमेंट है भूटान का, वो और उनकी ब्यूटी है, मैं तो पर्सनली वहाँ विजिट किया हूँ। इतना सुंदर देश है, एकदम स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लोगों को टूरिज्म में। लेकिन वहाँ की दो फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक मैंने पहले जिक्र किया कि जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वहाँ के किंग केसर वांगचू का, कि भाई उसको एक तरीके से लो कार्बन ग्रीन सिटी, लो राइज सिटी, होलिस्टिक लिविंग सिटी एक तरीके से बनाया जाए, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है जो महायान बुद्धिज्म से निकला है, वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस भी लोगों को, ना केवल भारत को, दुनिया को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो दो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जब क्योंकि पहले रोड से जाना पड़ता था, सिलीगुड़ी से आप जाते थे जो जलपाईगुड़ी से होते हुए समय लगता था। हालांकि नेपाल जब आसाम के थ्रू जाते थे तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, लोग पेट्रोल डलाने भी भूटान चले जाते थे रोड से। लेकिन जिस तरीके के जो रेल कनेक्टिविटी दो प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये बहुत आसान
लोगों का एक्सेस बना देंगे भूटान के लिए, और भूटान में टूरिज्म का एक तरीके से रास्ते खुल जाएंगे, और न केवल भारत के लोगों को, दुनिया के लोगों को वहां पर जाने का, और दोनों की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा, ग्रोथ होगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वेलकमिंग प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को बधाई देनी चाहिए कि इस तरीके के इनिशिएटिव, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके आ रही है, और बिना किसी स्वार्थ के लेके आ रही है। बांग्लादेश में भी हमने कोशिश किया, श्रीलंका में भी हमने जो जाफना को कोलंबो से जोड़ा, नेपाल को भी हमने पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दिया, और भूटान को दिया। तो एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है, और मुझे लगता है कि ये पूरे ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन, जो मोदी जी का विजन है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से, वो हम, मुझे लगता है कि उसको हम जल्दी ही अचीव करेंगे। जी, जाहिर सी बात है डॉक्टर संजय जी कि भारत और भूटान के बीच रेल नेटवर्क दोनों देशों के बीच संबंधों को और नई मजबूती प्रदान करेगा। आप दोनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।